Good morning, students. Students, as we know that we are going to chapter 5, and the title of the chapter is Indigo. Students, we know well that the chapter Indigo is written by Louis Fisher, and in this chapter the author has given the description of Gandhi's visit to Champaran. Champaran is a district that is located in Bihar, and the author tells us that reaching there, Gandhi started his struggle against the British landlords for the sake of the sharecroppers of Champaran. अब देखिए, ऑथर ने हमें बताया that we have read in the previous lectures, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, गांधी की चंपारण विजिट के बारे में बताया और ये बताया कि वहाँ पर उन्होंने शेयर क्रॉपर्स के लिए मीन्स ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से एक संघर्ष जारी किया, and with all the efforts of Gandhi, he became victorious. और गांधी जी के प्रयासों से गांधी जी अपने इस संघर्ष में विजयी हुए। विजयी होने से मतलब है कि जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने शेयर क्रॉपर्स को मीन्स उनका पैसा वापस किया और अंत में उन्होंने अपने जो बड़े बड़े फार्म्स थे उन्हें छोड़ दिया, एंड फाइनली दोज बिग फार्म्स reverted to the peasants. And one more thing was there, indigo sharecropping came to an end. Indigo sharecropping means disappeared forever. और इसके साथ ही साथ इंडिगो शेयरक्रॉपिंग समाप्त हो गई। अब देखिए बच्चों, इसके बाद भी गांधी जी ने अपने आप को संतुष्ट महसूस नहीं किया। As he saw the cultural and social backwardness in Champaran villages, and that was the only reason he wanted to do something or the other to remove the cultural and social backwardness from those villages. अब देखिए, गांधी जी का ध्यान चंपारण के गांवों में जो सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन था उस पर गई और वो अब उस कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस को समाप्त करना चाहते थे, उन गांवों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे, एंड दैट वाज द पॉइंट दैट ही अपील्ड द टीचर्स टू कम फॉरवर्ड to remove the cultural and social backwardness there. We have read that several other people came from Bombay, Pune and other distant parts of the country. His youngest son Devdas also came there, and Mrs. Gandhi also came there. Kasturba Gandhi also came there. So, first of all, the teachers named Mahadev Desai and Narhari Parikh, they were the two young men who had just joined Gandhi as disciples, and their wives volunteered for the work. अब देखिए, दो युवा टीचर जिनका नाम महादेव देसाई और नरहरि पारिक था, उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ स्वेच्छा से अपने आप को इस कार्य में लगा दिया
meaning thereby they volunteered for the work to remove the cultural and social backwardness from there. अब इसी दौरान बॉम्बे, पूना और देश के विभिन्न भागों से भी बहुत से लोग आ गए। गांधी जी का सबसे छोटा बेटा देवदास और उनकी पत्नी श्रीमती कस्तूरबा गांधी भी वहाँ पहुँच गई। तो देखिए, सभी ने बहुत प्रयास करना आरंभ कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल they paid attention towards the education system, and with all the efforts means primary schools were opened in 6 villages. सबसे पहले शिक्षा की ओर ध्यान देते हुए वहाँ के 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल्स खोले गए। एंड कस्तूरबा गांधी also taught the ashram rules on personal cleanliness and sanitation to the people there. और कस्तूरबा गांधी ने वहाँ के रहने वाले जो लोग थे, निवासी थे, उन्हें स्वच्छता और सफाई के बारे में बताया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट from the third paragraph of page number 53. Now see the book. Health conditions were miserable. देखिए, health conditions were also not good. Health conditions were also miserable. अब देखिए, now they started paying attention towards the health condition there. देखिए, वहाँ पर जो स्वास्थ्य की स्थितियाँ थी, जो स्वास्थ्य की सुविधाएं थी, वो भी काफ़ी दयनीय थी। गांधी got a doctor to volunteer his services for 6 months. Gandhi went to a doctor and asked him to give his service for 6 months voluntarily. अब देखिए, गांधी एक डॉक्टर के पास गए और 6 महीने तक स्वेच्छा से अपनी सेवाएं देने के लिए उन्होंने डॉक्टर से आग्रह किया। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल। देखिए, 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल देयर। वहाँ पर 3 मेडिसिन्स अवेलेबल थे, कैस्टर ऑयल, कुनेन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। बेसिकली दीज 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल देयर। देखिए, वहाँ पर ये 3 मेडिसिन अवेलेबल थी, जिनमें कैस्टर ऑयल, कुनेन और सल्फर ऑइंटमेंट था। अब देखिए, कैस्टर ऑयल, कुनेन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, ये तीनों मेडिसिन्स किस किस रोगी को दी जाती थी? एनीबडी हु शोड ए कोटेड टंग वाज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल. Anybody who had the mouth ulcers, coated tongue. अब देखिए, किसी व्यक्ति को मुंह में छाले हो जाया करते थे तो उसे एक डोज कैस्टर ऑयल की दी जाती थी. He was given a dose of castor oil. And anybody with malaria fever received quinine plus castor oil. और किसी को भी यदि मलेरिया हो जाता था, मलेरिया फीवर, तो he or she was given a dose of quinine plus castor oil. तो उसे quinine और castor oil दिया जाता था. And anybody with skin eruptions, और किसी को यदि स्किन इरप्शन हो जाता था, अगर त्वचा में कुछ फोड़े फुंसियाँ हो जाया करते थे, तो he or she was given ointment plus castor oil. तो उसे सल्फर ऑइंटमेंट और कैस्टर ऑयल दिया जाता था. Gandhi noticed the filthy state of women's clothes. अब now Gandhi noticed that the women there used to wear dirty clothes. अब देखिए, गांधी ने देखा कि जो महिलाएं थीं वो गंदे कपड़े पहना करती थी.
तो ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट। तो देखिए गांधी जी ने कस्तूरबा गांधी से, अपनी पत्नी से, उन महिलाओं से बात करने को कहा। वन वुमेन टुक कस्तूरबा इनटू हर हट एंड सेड, इस पर एक महिला श्रीमती गांधी को अपनी हट में ले गई, अपनी झोपड़ी में ले गई और कहा, लुक देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लॉथ्स। बोली देखो हमारे पास मीन्स कपड़े रखने के लिए ना कोई बॉक्स है, ना कबर्ड है, ना अलमारी है। द साड़ी आई वॉज वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग that the sari that woman was wearing, that was the only one she had। और उस महिला ने कहा कि जो साड़ी मैं पहने हुए हूँ यही एकमात्र साड़ी मेरे पास है। मीनिंग देयर बाई सच वॉज द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पीपल दैट टाइम। They did not have plenty of clothes. They had only limited clothes, and that was the only reason the women used to wear dirty clothes. So children, during his stay in Champaran, during his long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch on the ashram. Although Gandhi stayed in Champaran nearly the entire year, चंपारण में अपने लंबे स्टे के दौरान, जैसा कि गांधी लगभग पूरे वर्ष, एक वर्ष चंपारण में ठहरे, तो गांधी kept a long distance watch on the ashram. He also kept a long distance watch on the ashram. चंपारण में रहते हुए भी गांधी जी का ध्यान हमेशा आश्रम की गतिविधियों पर रहा। He always kept his eye on the different activities of the ashram. He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts. अब देखिए, he used to send regular instructions to the ashram by mail and also asked for the financial accounts. गांधी जी लगातार अपने आश्रम बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मेल के द्वारा भेजते थे और वहाँ पर जो फाइनेंशियल अकाउंट्स था उसकी भी जानकारी रखते थे, उसके बारे में पूछा करते थे। Once he wrote to the residents that it was time to fill the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. देखिए, once he wrote to the residents of the ashram who were living there that it was the time to fill the old latrine trenches. एक बार उन्होंने आश्रम के जो रेजिडेंट्स थे, आश्रम के जो निवासी थे, आश्रम में जो रहने वाले लोग थे, उनको एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि जो ओल्ड लेटरिन ट्रेंचेस थे वो भरने वाले थे एंड डिग न्यू वंस, और नए लेटरिन ट्रेंचेस खोदने का समय था, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, अदरवाइज द ओल्ड लेटरिन ट्रेंचेस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, अन्यथा जो पुराने लेटरिन ट्रेंचेस थे या पुराने जो लेटरिन के गड्ढे थे उनमें से बैड स्मेल आना आरंभ हो जाएगी। तो देखिए, चंपारण में रहते हुए भी गांधी जी आश्रम की जो छोटी छोटी बातें थी उन पर भी पूरा ध्यान रखा करते थे। एंड ही यूज्ड टू सेंड रेगुलर इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम बाय मेल। ओके स्टूडेंट्स, एंड
I hope you have got it, and we shall go through the next lecture in the next video. Thank you.